Good morning, class 12th. Today we will start next topic, that is Beyond the Frontier, on page 248 of chapter 9. Writer of Chronicles list में high sounding titles assumed by the Mughal emperors. These included general titles such as Shah Jahan means King of Kings, Jahangir means World Caesar, or Shah Jahan means king of the world. We know Akbar's successor as Jahangir, but Jahangir is a title. His real name was Nasruddin Muhammad Salim. Similarly, Shah Jahan's real name was Shahabuddin Muhammad Khurram. These titles are listed in the high-sounding titles at the areas where these rulers ruled. Thus, these titles inform us to how large an empire they had commanded during his rule. Next topic is Safavids and Gandhar. The Safavids were Persian rulers and Gandhar was important town in Afghanistan. Now, how would he Mughals have political connections with the neighboring countries of Iran and Turan? This was largely determined by the control of frontier defined by the Hind Kush mountains. All conqueror who sought was to make their way into the Indian subcontinent had to cross the Hind Kush to have access to North India. Therefore, it was the constant effort of the Mughals to control the outpost of strategic importance, especially Kabul and Gandhar, to avoid this danger. Gandhar was the root of the dispute between Safavids and Mughals, as both wanted to take control over it. Gandhar remained with the Mughals from the rule of Humayun from the rule of Jahangir. In the winter of 1622, a Persian army seized Gandhar. The ill-prepared Mughal garrison was defeated and had to surrender the fortress and the city to the Safavids. Next topic is the Ottomans, pilgrimage and trade. The Ottoman Empire had ruled over part from Central Asia to Eastern Europe. The Mughals wanted friendly relations with the Ottoman Empire as the region was important for trade and for pilgrimage centers Mecca and Medina. The Mughal emperor usually combined religion and commerce by exporting valuable merchandise to Aden and Mocha cities, both Red Sea ports, and distributing the proceeds of the sales in charity to the keepers of shrines and religious men here. Now, next topic is Jesuits at the Mughal court. Jesuits means Society of Jesus. Means ये एक मिशनरी है क्रिश्चियनिटीज़ की. इसके जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस, उन मेंबर्स को जेसुइट्स कहते हैं. मीन्स ये मिशनरीज है, इनका एम होता है जो क्रिश्चियनिटी है उसको एक्सपेंड करना. तो अगर हम लोग देखें तो हमें जो यूरोपियंस को ये जो जेसुइट्स जो है मिशनरीज, यूरोपियन ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स और डिप्लोमेट्स से काफ़ी नॉलेज गेन की उन्होंने इंडिया के बारे में. और इस इंडिया की जो नॉलेज से उनको ये पता चला कि इंडिया काफ़ी जो है प्रॉस्पेरस एंड वेल्दी नेशन है. यही रीज़न है कि आने वाले समय में जो है उन्होंने डायरेक्ट सी रूट फाइंड आउट करना स्टार्ट किया 15th सेंचुरी के बाद में.
और पोर्तुगीज़ जो रूलर्स जो थे वो क्रिश्चियनिटी जो है उसको जो है एक्सपेंड करना चाहते थे। जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो मिशनरीज थी, जेसुइट्स, उनको उन्होंने जो है वो चाहते थे कि वो इंडिया में आए और प्लस वो यहाँ पर ट्रेड भी करना चाहते थे। यही रीज़न है कि उन्होंने आगे जाके कई जो है वो पर्सन्स को, कई जो है लोगों को उन्होंने इंडिया का जो डायरेक्ट सी रूट है उसको फाइंड आउट करने के लिए भेजा, जिसमें वास्को डी गामा भी है। तो अगर हम लोग देखें तो 16th सेंचुरी के बाद में ये जो जेसुइट्स थे वो इंडिया में आए, जब ये डायरेक्ट सी रूट फाइंड आउट कर लिया गया। और उस टाइम पीरियड में अकबर का रूल था और अकबर जो है काफ़ी क्यूरियस था, वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जानना चाहता था। ये रीज़न है कि जब उनको पता चला अकबर को, उन्होंने एक जो है उनको एक रिक्वेस्ट भेजी कि आप गोवा से जो है मुझसे एज ए बादशाह मुझसे मिलने के लिए आओ। और फिर ये जो जेसुइट्स जो डिप्लोमेट्स थे, ये जो प्रिस्ट थे, ये फतेहपुर सीकरी में 1580 में उन्होंने अकबर से जो है मीटिंग की और अकबर जो है वो उनके बारे में जानना चाहता था। उसने वहाँ पर जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स है, उलेमाज, उनके साथ में डिबेट्स जो है ऑर्गेनाइज की और जो है ये मिशन जो है वहाँ पर 2 years तक वहाँ पर वो रुका है। और उसके बाद में 1580s के बाद में ये मिशन जो है 1591 में और 1595 में भी इस तरह के मिशंस जो है वो आए मुग़ल कोर्ट में, अकबर से मिले। अकबर जो है इनसे पर्सनली जो है इनको ऑब्ज़र्व करना चाहता था। इसने अपने जो मुग़ल कोर्ट में इनको जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस दी, ईज़िली बाकायदा जो है ये अकबर के जो है थ्रोन के काफ़ी क्लोज बैठते थे। कई मिलिट्री जो कैंपेन होते थे वहाँ पर जो ये जेसुइट्स, ये जो प्रिस्ट है वो साथ में जाते। इवन जो मुस्लिम, ये जो मुगल्स जो है उनके जो चिल्ड्रंस थे, बादशाह के जो बच्चे थे, उनको ये ट्यूशन देते, उनको ये टीचिंग कराते। और कई बार जो है मुग़ल बादशाह, फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर, जब भी अपने फ्री टाइम में होते तो इनके साथ टाइम स्पेंड करते और जो रिलीजन है उसके बारे में वो जानने की कोशिश करते। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। तो अकबर की जो एक क्यूरियोसिटी थी और यही रीज़न था और वो सभी रिलीजन को एक बराबर रखता था। ये रीज़न है कि उसके कोर्ट में जो है जैन, जो है सिख है, मुस्लिम्स है, हिंदू है, पारसीज, क्रिश्चियंस सभी आपको मिलेंगे। अकबर ही जो है उन्होंने इन सबको साथ में लेके इबादत खाना स्टार्ट किया था। इस इबादत खाना में जितने भी जो डिफरेंट रिलीजन्स होते उनकी डिबेट्स होती, वो अपने वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो वहाँ पर रखते थे। तो ये उन्होंने एक और जो इबादत खाना स्टार्ट किया और ये जो उन्होंने जो भी कुछ इन्होंने जो गेन किया है वही आगे जाके अकबर ने अपने टाइम पीरियड में दीन इलाही करके एक रिलीजन भी स्टार्ट किया था। तो अगर हम लोग देखें तो ये जेसुइट्स जो है इन्होंने क्वेश्चन किया है, इन्होंने वहाँ जाके यूरोप में बताया कि जो बादशाह अकबर है वो अपने खुद के जो रिलीजन इस्लाम से सेटिस्फाई नहीं है, वो अपना जो रिलीजन वो चेंज करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि वो हमें अपने पास बुला रहे हैं और हमारे जो रिलीजन उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस समय अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर जो इनटॉलरेंस की पोजीशन थी, रिलीजियस इनटॉलरेंस था यूरोप के अंदर। और ये अपने ऑनर्स को ये बताना चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल है और हम लोग यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को काफ़ी जो है उसमें काफ़ी सक्सेसफुल है। हम लोग अपने मिशनरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसका जो है काफ़ी जो है वो प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं और यहाँ पर फॉलोवर्स को। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो जल्द जो है मुग़ल बादशाह भी हमारे रिलीजन को एडॉप्ट कर लेंगे। तो वो अपनी जो है हो सकता है कि अपनी जो अचीवमेंट को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वो हो सकता है कि उनको ये मैसेज कर रहे थे। यूरोप में उनके जो ऑनर्स थे उनको ये बता रहे थे कि अकबर बादशाह हमसे इतना कुछ जानना चाहते हैं, इसका मतलब वो अपने रिलीजन से सेटिस्फाई नहीं है। वो उनकी इस क्यूरियोसिटी को क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि वो अपने जो रिलीजन को कमज़ोर मानते हैं, उसमें उनका फेथ नहीं है। जबकि अगर हम लोग देखें तो अकबर ने सभी रिलीजन को दिया है। हमें जो
अकबर जो अबुल फजल है उनकी जो क्रॉनिकल है अबुल फजल ने जो रिटर्न में है उसमें अकबर की ये जो फिलॉसफी है, जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट जो रिलीजन्स को समझने का, उसको उन्होंने उसमें दिखाने की कोशिश की है। और यही रीज़न है कि अगर हम लोग देखें तो अकबर ने आगे जाके जब हम लोग देखते हैं ये होलोज वाला कि कैसे जब जहांगीर और वो है उनके फेस के पीछे होलोज यानी एक पीछे जो है वो तेज दिखाया जाता था, जैसे हम लोग इसमें दिखाते हैं किसी जो गॉड की जो फोटो होती है उनके हेड के पीछे एक हॉलो मतलब एक बड़ा सा जो है वो रोशनी का जो है वो बताते हैं। तो सेम ये जो कंसेप्ट है वो भी उन्होंने अपनाया, क्योंकि उन्होंने ये माना अकबर और अबुल फजल ने कि जब हम लोग इस तरह से जो है अपने किसी भी जो रिलीजन है उस पर हम लोग जब डिटेल्ड में स्टडी करते हैं तो उससे जो वो पर्सन है जिसने ये गेन किया है नॉलेज, वो ईश्वर के जो गॉड है उनके काफ़ी क्लोज हो जाता है। थैंक यू।